बने हुए, बिनते मुस्तफ़ा के हैं जो दुश्मन बने हुए, रोज़े जज़ा भी उनके लिए कुछ जज़ा नहीं। बिनते मुस्तफ़ा के हैं जो दुश्मन बने हुए, रोज़े जज़ा भी उनके लिए कुछ जज़ा नहीं। और ज़हरा के दुश्मनों के मुक़द्दर से खौफ खा, और ज़हरा के दुश्मनों के मुक़द्दर से खौफ खा, दोज़ख भी उनके जुर्म की पूरी सज़ा नहीं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत पर आवाज़े बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वसब्बरकुम फअहसन सुवरकुम इलैहिल मसीर वयअलमु मा फिस समावाति वल अर्दि वयअलमु मा तुसिरून व मा तु'लिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अस्सलातु वस्सलामु अत-तहिय्यतु व लिकरामिल अशरफिल नबिय्यीन व खातिमिल मुरसलीन सय्यिदना व नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद الذي في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعا پروردگار عالم بانیان کے یہ صفی عزا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و فرمائے. جناب شجاعت بھائی، مان بھائی، ارشاد صاحب، پروردگار ان کے گھر میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. اتنے سارے ہمارے ماتمی بھائی آدھی رات کے وقت اس موسم میں مٹی پہ بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ پاک حسین کی پاک اماں راضی ہو جائے. پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. پروردگار اس پورے علاقے پہ اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. ایک دعا آپ کو بتایا کہ خصوصی دعا ہے جو جب سے محرم کا چاند طلوع ہوا ہے ہم یہ دعا ہر جگہ مانگ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا ہاتھ چونکہ حسین کے لیے اٹھتا ہے اس کا بڑا مقام ہے، ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے کہیے پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما. جو ہمارے بہن بھائی سیلاب سے متاثرہ ہیں مولا ان کی مدد فرما. جو ہمارے بہن بھائی زیارات کے لیے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں کسی بھی طرح کی کاغذات کی یا بارڈر کی بندش کا کوئی مشکل ہے، پروردگار تجھے واسطہ باب الحوائج سخی باوفا عباس کے کٹے ہاتھوں کا مولا ان کی مشکلات دور فرمائے. اور حسب معمول ایک ایسی دعا جس کا ہمیں آج بھی فائدہ ہے اور ہماری نسلوں کو آئندہ فائدہ ہوگا. ظاہر ہے جو بھی دنیا میں ہے اس نے رہنا نہیں ہے، ہماری نسلیں آئیں گی ہم نہیں ہوں گے. پروردگار جو ہمارے ملک سے مخلص ہے میرے اللہ اس کی مدد فرما، اور جو ہمارے پاکستان سے عوام پاکستان سے سرزمین پاکستان سے کسی بھی طرح کی غداری یا توانبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نیست و نابود فرمائے. اول سے آخری ماتمی حلالی تک ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ 14 پیر ہم پہ راضی ہو جائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسب عادت پھر ویسا ہی آپ نے اپنی سنت پہ عمل کیا ہے. میں 9 بجے کا حاضر ہو گیا تھا اور اب ٹائم دیکھنے کے پورے 12 ہو گئے. اور میں ہمیشہ جب بھی نوکری کرتا ہوں اب میں نہیں مہربانی نہیں، میں تو آپ کا نوکر ہوں. گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اب میں کھڑا ہوں تو یہ کوئی تقریر کا ٹائم نہیں ہوتا. تقریر کا ٹائم یہی ہے 10:30 11 ہاتھ. تو میں جب بھی آتا ہوں یہی ترلا خریدا منیا کوئی نہیں جانتا. تو مہربانی ذرا کوشش کیا کریں چونکہ ہم مولا حسین کے ڈائریکٹ نوکر نہیں ہیں، وہ آپ ڈائریکٹ ہیں. ہم مولا حسین کے نوکروں کے نوکر ہیں. تو اس لیے مہربانی آپ کی کہ اگر ٹائم ایسا مل جائے کہ جب تک آپ بھی تھوڑے فریش ہوں، ماحول بھی ایسا ہو تو ذرا اچھا
تیار ہے سر؟ مولا سلامت رکھے. پھر اجازت بات شروع ہو جائے. اور ایک مرتبہ زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے الوا والے کے بابا کا نعرہ لگاتے ہیں. اونچا نعرہ حیدری. اچھا اب یہ بتائیے ٹائم میرے پاس ہے اس وقت جناب تقریباً 20 سے 25 منٹ میکسیمم, یعنی مجلس کا ٹائم میرے پاس 20 منٹ ہے جو مجھے بانیان کی طرف سے حکم ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے ٹائم میں آپ نے کوئی نیا موضوع سننا ہے, پسند کرنا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں وہاں سے شروع کروں جہاں سے قاری صاحب ختم کر کے گئے ہیں؟ کہاں سے؟ اچھا سب کے جائے مولا کا سلامت رکھے. تو پھر میں یعنی کہ 15-20 منٹ میں اپنا سبق سنا سکتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی پاجی پھر مجبوری بھی ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ ہاں آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ یہ پھر پولیس سیکورٹی کا معاملہ ہوتا ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ میری وجہ سے آپ تک کوئی مشکل پیش آئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی فکرہ سنیے میرے پاجی, اب 2 منٹ مجھے دیں گے آپ انشاءاللہ. سرکار تیاری ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار اجازت ہے؟ پہلا فکرہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ تھکن اتر جائے. جی اچھا ابھی چیک ہو جائے پھر. لو پھر تیاری کریں شیرو بھائی جی, تیاری کریں. ابھی پہلا فکرہ آ رہا ہے اور دیکھتا ہوں کہ جناب واقعی کتنے موڈ میں بیٹھے ہیں. 15-20 منٹ کی جیسا بھی بات ہے, ذرا سونی سی چاچا جی دعا ممبر تک آنی چاہیے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, ابھی قاری صاحب پڑھتے ہیں, وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا. اور چھوڑیے اس بات کو کہ کس کا شیعہ تھا, علی کا ہو یا نو کا, تھا تو شیعہ. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اس بات کو چھوڑیے کہ کس کا شیعہ تھا. چاچا جی خان صاحب کس کا شیعہ تھا اس الگ مسئلہ ہے. تھا شیعہ, ابراہیم شیعہ ہے, ابراہیم شیعہ ہے. وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم شیعہ ہے. اگر تو جناب امتحان لینا چاہتا ہے تو پھر میں آپ کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہوں. اور اگر آپ نے جملہ سننا ہے پھر سونی آواز آخری بار تک ممبر تک آئے. اے مولوی صاحب قرآن کہتا ہے ابراہیم شیعہ تھا جس کی یاد میں تو بکرا ذبح کرتا ہے. اگر شیعہ کافر ہے تو بڑی عید پہ کتا ذبح کر, بکرا تو شیعہ کے علاوہ ہے. بھائی صدقے جاواز, صدقے جاواز. مولا آپ کے ہاتھوں پہلے جملے تو چھپے جی, پہلے جملے تو صدقے جاواز. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. اندر والے, باہر والے, گلی والے, علی والے, حیدری. منشی باغرہ زندہ باد ہے یار. چاچا جی تہاڈی مہربانی, آپ کی کیا بات ہے بھائی. مولا آپ کے ہاتھ صدقے جاواز. قرآن دی قسمیں تہاڈی کیا بات, صدقے جاواز. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا جی مہربانی, سرکار بہت شکریہ. بھاجی گوگا کتنے گیا جی. چاچا جی تو دسنا ہے گوگا بھائی, پاکالو جی, بھائی حسن. میں وہاں بیٹھا تھا, اردو کر رہا تھا. انہوں نے حکم دیا ہے 20 منٹ نے تو میں مجلس بھی پڑھنی ہے تو بھاجی کا حکم بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ آدھے نے جی سانو تھوڑا جا یہ اینڈ کر کے سنایا جی, تو وہ میں مکس کر لوں گا ٹھیک ہے, تاکہ حکم بھی پورا ہو جائے. اگوں پڑھنے نہ پائیے. آہو سمجھے وہ بھی بانی نے نا راضی کرنا ہوتا ہے. بھاجی بلڈنگ ایک ویکھ لو, یہ کسے ذاکر بنائی ہے؟ مولوی صاحب نے. کنے؟ اللہ تو سلامت کہ مستری بناتا ہے, مستری بلڈنگ بناتا ہے. قرآن وَإِذْ يَرْفَعُ قَوَائِدَ إِبْرَاهِيمَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. اللہ قرآن میں کہتا ہے جدھر منہ کر کے 5 وقت نماز پڑھتے ہو نا, یہ بلڈنگ ابراہیم نے بنائی ہے. مستری ابراہیم تھا, مزدور اسماعیل تھا. یہ مولوی اسی کا پھیرا بیٹھا, رکھ سر پہ قرآن اور فیصلہ دے. جس بلڈنگ کا مستری علیہ السلام ہو, درمیان میں آنے والا رضی اللہ کیسے آئے گا؟ جی رضا بھائی, جی گوگا بھائی بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یار ایسے لگتا ہے منشی باغلہ میں نہیں, یہ تو وزیر خم ہے. اونچا نعرہ حیدری. جی مانی مہربانی, بہت شکریہ. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یار ایڈا سونا مجمع, قرآن دی قسم ایڈا سونا مجمع. بھائی رجب جی, گوگا جی کہہ رہے تھے, بھائی روگی صاحب, ارشاد جی, سعید بھائی, شیرو بھائی, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو آپ نے پڑھا تھا نا ایک مرتبہ کہ جناب ابراہیم نے کلہاڑے کے ساتھ بتوں کو کیسے توڑا تھا, وہ ذرا ہلکا جا پڑھا جی. چونکہ یہ میرا پڑھا ہوا ہے, یہ آپ کو آتا ہے. اب میں گوگا بھائی کو راضی بھی کرنا ہے, اور میں نے پڑھنا وہ جملہ جو میں نے پڑھا نہیں ہے. جو ہو گیا وہ ہو گیا. ذرا سر چکو.
कैसे तोड़ा था गोगा भाई जी, बाकी थोड़ी गल फिर इंशाल्लाह। कैसे तोड़ा था? पैंतन दी किस्म में हर तफसीर में लिखा है, वड्डे बुत कदे की कुंडी लगा के ना अंदरों वड्डा कुंडा मार के कुल्हाड़े से उसे भी तोड़ा, उसे भी तोड़ा, उसे भी तोड़ा। जब बड़े बड़े बुतों को तोड़ा तो कुल्हाड़ा रखा वड्डे बुत के मोंडे पे, आवे अंगूठा ते आए चीची ते उंगलियां पिछे त्रै हुंदियां ने, 5 उंगलियां नहीं, एक अंगूठा ते एक चीची उंगलियां ने। हजरत अल्लामा तालिब जोरी फरमाते हैं अल्लाह लानत करे इस बड़े बुत पे, ये हर जगह रहता है। भाई सदके जामा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। भाई अब मैं देखता हूँ कौन सा शिया हाथ था जो भी तईद अली में उठा नहीं है। पता नहीं कितों मौलवी शियों ने निकाल लिया है कि अली नबियों से तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जब अली वाजिद भाई जब अली नबी नहीं है तो अली अंबिया से अफसर कैसे हो गया? और मौलवी ऐसी पागल नहीं, भंग चर्च पी के नहीं, कुरान पढ़ के कहते हैं सिवाय हुसैन के नाना के अली 1.25 लाख नबियों से बेहतर है। और कुरान पढ़ के देख, 1.25 लाख नबियों में मेरे मोहम्मद के अलावा सबसे अफजल नबी इब्राहिम है। कुरान ने लाहौर वाले फैसला दे दिया, जो जमीन पे खड़े होके बुतों को तोड़े उसे इब्राहिम नबी कहते हैं, जो मोहम्मद पे खड़ा होके तोड़े उसे मौला। साउंड वाला भाई थोड़ा थोड़ा साउंड वाला खोलिएगा ताकि सांस खींच रहा है। मैं सदके जाऊँ और यार मजमे एडा सोना से अब मौला की किस्में जाकर दी कोई मैं भाई गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। जब सफ़ेद लाभ बिछाए तो मुंह ठंडा रखते हैं। साउंड वाले भाई जी जब मैं थोड़ा ऊंचा बोलता हूँ ना फिर आप थोड़ा नीचे कर लें ताकि फटे नहीं, और जब मैं आस्था बोलूँ तो फिर आप भी जरा पहले चिट्टे पे कर लिया करें। सदके अल्लाह आपको सलामत। भाजी आप इजाजत देते हैं कि जो 2-3 जुमले पढ़े हैं इससे बहुत ऊपर जाएं? मौला तो सलामत तैयारी है। फिर खबरदार अगर किसी ने आपके सामने कहा कि 1.25 लाख सहाबा के सामने रसूल ने कहा था जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, पैंतन पाक की कसम गलत, पैंतन की कसम गलत, ऐसा नहीं है। जरा सिर चुको, एक बार जिगर पे आता है बड़ा साल हो, अगले साल 27 तक विलायत का नशा उतर जाए, मैं तो पुत्र क्यों हुआ, सिर चुको। खबरदार अगर किसी ने कहा सरकार ने ना 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 पहले सरकार ने कहा ए किन्ने को वो तुसी बादशाह जी 1.25 लाख। अच्छा हूं तुसा बोलना है, सरकार फरमाते हैं वो 1.25 लाख, वो 1.25 लाख जी। फरमाया है पहले इससे पहले ये बताओ कि तुम मुझे क्या समझते हो। ओए जुमला था खुद सदके जावा मौला आपके हाथ सदके जावा जरा समझा दी पाक अम्मा भी सलाम है जी बिस्मिल्लाह करा। ओए 1.25 लाख, वो 1.25 लाख, ओए मुझे क्या समझते हो। सारे चुप। इधर से जनाब सलमान बोले बादशाह जी आप मेरे मौला है। अबू ज़र बोले बादशाह जी मेरे मौला है। अम्मार बोले मेरे मौला है। अबू ज़र बोले मेरे मौला है। मिकदाद बोले मेरे मौला है। हुज़ैफा बोले मेरे मौला है। उन्हें सजा पासा सारा क्लियर हो गया ना उनका भी पास है। हज़रत अबू बकर बोले मेरे मौला है। हज़रत उमर ने कहा अब मेरे मौला है। हज़रत उस्मान ने कहा अब मेरे मौला है। सलमान ने कहा अब मेरे मौला है। तो जैसे ही ये कह रहे थे ना अब वो आया जो कुरान लाता है, वो कहता है बादशाह जी सिर्फ इन्ना नहीं अब मेरे भी मौला है। तो जी अम्मा शिया बोले फिर वो आया जो नबियों की रूहें निकालता है। हाय हाय हसन भाई जुमला बड़ा था। हसन भाई आपके लोगों से बात थोड़ी आई सदके जावा। फिर वो आया जो नबियों की रूहें निकालता है जिसे आप इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं। फिर वो कहता बादशाह जी सिर्फ जिब्रील का नहीं, आप मेरे अरशाद साहब बारीक जुमला का लगा। फिर ये मखलूक जो थी ना हज़रत जिब्रील और मिकाईल, ये है परों वाली मखलूक। ये कहाँ गई
तो मेरा ख्याल है इतों ही गल निकली है कि उड़ती उड़ती गल आई, उड़ती उड़ती गल गदीर के ऊपर गई। आदम ने कहा अब मेरे मौला है, नूह ने कहा अब मेरे मौला है, इब्राहिम ने कहा अब मेरे मौला है, मूसा ने कहा अब मेरे मौला है, ईसा ने कहा अब मेरे मौला है, ज़ुन्नून ने कहा अब मेरे मौला है, अय्यूब ने कहा अब मेरे मौला है, याकूब ने कहा अब मेरे मौला है, यूसुफ ने कहा अब मेरे मौला है, बिन्यामीन ने कहा अब मेरे मौला है, हारून ने कहा अब मेरे मौला है, शीश ने कहा अब मेरे मौला है, कनान ने कहा अब मेरे मौला है, हाम ने कहा अब मेरे मौला है, शाम ने कहा अब मेरे मौला है, शीश ने कहा अब मेरे मौला है, अब्दुल्लाह ने कहा अब मेरे मौला है, याहूद ने कहा अब मेरे मौला है, सुलेमान ने कहा अब मेरे मौला है, दाऊद ने कहा अब मेरे मौला है, शमूल ने कहा अब मेरे मौला है, हारून ने कहा अब मेरे मौला है, यूशा ने कहा अब मेरे मौला है। जब 1.25 लाख नबियों ने कहा आप हमारे मौला है, फिर ज़हरा के बाबा ने कहा ओए 1.25 लाख है, ओए 1.25 लाख है, मैं क्या हूँ? फरमाया मौला है। फरमाया फिर सुनो जिसका मैं मौला हूँ और उसका मौला। मेरे पिछों ना चौधरी पिंड पै जेड़ी पई है किल किल मकान लगा जेड़ा पर्दे चों आया सी महाराज वारी उच्चा करके हाथ बाउन लगा। अल्लाह तो सलामत रखे। जनाब चौधरी मुस्तफा साहब वो कहते हैं मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ और मैं लाइव सुना भी रहा हूँ, तो उन्होंने पे वही लुत्फ आ रहा है इबादत का, तो अगला फिक्र होर पढ़ ले कि ठीक हो गया। नहीं मौला सदके जा। अच्छा मेरे इसमें शक ही नहीं, मैं आपका नौकर हूँ जनाब, आप मुझे घर का फर्ज समझते हैं, ये आपकी ज़रा नवाजी है, मैं आपका नौकर हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। इब्राहिम उसके व इन्न मिन शियातिही ला इब्राहिम, इब्राहिम भी उसके शियों में से था। ध्यान करें मौलवी जी किसके, चलो बड़े शिया है, अली के शिया नहीं, नूह के शियों में से था। हुन सारे इतने कार साहब इतों पढ़ गए हैं, हुन कुछ अल्लाह सारे बोला जी मौलवी साहब इब्राहिम सारे वे बोला जी इब्राहिम अगर नूह का शिया है तो नूह किसका शिया था? मुंशी जिंदाबाद है जी, मुंशी बासठ के जावा सदके हाय हाय मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मैं बगैर दांत के पढ़ने लगा हूँ, कहना कितना कोई इंसाफ सदके देना चाहता नहीं, आप कितना इंसाफ करते हैं मौलवी साहब। चलो नूह सही, नूह किसका शिया था? चाचा जी सारी तफसीर में लिखते हैं नूह आदम का शिया था। आदम किसका शिया था? और बगैर दांत तो सुना भला भला कि सुनते हो। आदम किसका शिया था? जैसे ही जनाब हव्वा को अल्लाह ने खल्क किया, हजरत आदम दौड़े, इस फितरत मर्दी फितरत दौड़े, अल्लाह का ठहर जा, पहले निकाह होगा फिर ये तुझ पे हलाल होगी। माल से आ रखा जी आदम किसका शिया है? आदम किसका शिया है? माल का ठीक है निकाह पढ़ना, हाँ फिर पढ़ जल्दी कर, माल का जल्दी कर। ये निकाह होगा कैसे? मेरी तो जेब में अभी कोई पैसा ही नहीं है, तो हकमार कहाँ से? तो फिर हवा मुझ पे हलाल कैसे हो गया? जी अम्मा शिया कनूसी न करे, मैं सोच के नहीं पढ़ रहा, कैसे नहीं पढ़ रहा, तो मुंह पढ़ के पढ़ना। सारे बोला जे ये परवरदिगार जेब में कुछ दर्जी होता तो जेब होती, जेब भी खाली है, क्या दूं ताकि हव्वा हलाल हो जाए? फिर मैं जिनके सदके में बना है ना उन पे 5 बार दरूद पढ़, हव्वा हलाल हो जाए। जी सदके जाना, जी सदके जाना। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। हुण मैं पर्दा पा के जुमला आखे लगा ते ओदी अम्मा दी कसम है, जिदी अम्मा शिया हो बोले ताकि न छुट्टी। इसका मतलब है 5 तन पर सलवात पढ़ने के बाद अम्मा अब्बे पे हलाल हुई थी। आज पता चला जो 5 तन का मुनकर है उसके घर में जनानी है, निकाल आया। पाजी थाके ना बोल बोल के बोल सदके जावा, सदके जावा। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। चूंकि निकाह नहीं है इसीलिए उन घरों में अली के दुश्मन पैदा होते हैं।
सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे, सदके जावा जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे। इब्राहिम हाय हाय सदके जावा तो क्या बात है, उसके शियों में से था। ये मेरी बहनों को नारा आ रहा है। चल माशाल्लाह, अल्लाह आपकी इस तरह चादर में खुद बड़ी मेहरबानी। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं तो मेरी तरफ से दुआ है इस नारे के सदके में अल्लाह आपकी जिंदगियां दराज फरमाए जी, मौला आपकी इज्जत और रिस्क में इजाफा फरमाए और आपकी चादरें महफूज रखे जी। लो पाजी जरा सिर चुको जी, बड़ा जुमला का। चूंकि मैं आगे बढ़ने लगा था, मैंने पाक गोगा से पूछा कि ये नारे की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो फरमाने कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं। ठीक है जी, ये मैं प्याना वा तो सारियाँ मावा भैन नहीं और यार किसी दिन बीवी में तो बैठे मेरी भरजाइयां में तैयार ना और मेरिया सारियां मावा भैन ने रिश्ते हो भी ना जी। सर सर उठाइए मौला आपको सलामत रखे। चूंकि कई ऐसे हैं जिनकी जवान भी बैठे होंगे तो मैं तो फटाफट आके जावा मेरिया ने। पाजी सिर चुको। अब एक फिक्रा अपनी माओ बहन के लिए कहने लगा हूं। चन्न से सोना पुत्र, एज 12 साल, नाम इस्माइल। या भाजी वड्डा जुमला कर लगा तो जुमला एक तौलिया मेरे को होंगे ना कि 7 होंगे तो मैं तुम्हें 7 वहा के फिर आंदा एडा मोटा पर्दा पा लगा, लेकिन तुहाडे कोई पर्दा नहीं, तुम विचों लभ लैना कि मैं की आख लगा। चन्न से सोना पुत्र, हाय हाय हाथ में लिया निकले। लाल टोपी पहन के झंडी लटक रही थी। बुढ़ा शैतान आया, एमी एमी ऐना को बोलो तो मैं राजी हाँ। अल्लाह लानत करे इब्लीस पे, जब भी आता है बुड्ढे की शक्ल में आता है। आपकी क्या बात है, मौला तुहानू सलामत रखे यार। तुहाडा मजमा एडा सोहना है, सदके जावा सदके जावा। ये 7-8 पर्दे ने ते आप तो साफ लाना जी। दस्तक दी एक बीबी के आवाज, भाजी बीबी के आवाज। कौन कहा तो अभी तक यहाँ है? बाबा जी होया कि तेरा शौहर इब्राहिम तेरे पुत्र को। बीबी हाजिरा कहती है बाबा जी 88 साल दुआएं मांग मांग के इब्राहिम को पुत्र मिला है, ये कैसे 88 साल तक ये कैसे मुमकिन है कि अब जब पुत्र मिला है, चंद से सोना पुत्र, वो भी 12 साल का, यंग हो गया, नौजवान हो गया, कुछ सालों के बाद शादी हो जाएगी, कत्ल करना है, ये कैसे मुमकिन है? और बीबी गल्ला ना कर, बाहर निकल। 7 पर्दे जे 7 पर्दे ते लभना आप ही जे। और बीबी बाहर निकल। अब उसका ना दिमाग काम नहीं करता क्योंकि वो बुढ़ा हो गया है, अब उसका दिमाग काम नहीं करता। बीबी ने वट्टा पकड़ा, हर मरे हट मरे हट मरे, तू बाबा नहीं तू इबलीस है। कहता बीबी तूने सही पहचाना, पाजी रखा तूने सही पहचाना कि मैं इबलीस हूं, लेकिन मेहरबानी कर तुझे समझ कैसे आई कि मैं इबलीस हूं? 5 बंदे बोलो पर्दे चौखे जे, तुम्हारी मेहरबानी। बीबी ने वट्टा मार का, अल्लाह की तुझ पे लानत हो, जो भी नबी की बीवी को घर से बाहर लाए या नबी के दिमाग में हमला करे, वो कल भी इब्लीस था, वो आज भी इब्लीस। सड़के जाना हाय हाय, जो समझा रोगी भाई, जो बंदा समझा है जी, मेरी तरफ से दोनों हाथों से सलाम है जी। ऊंचा नारा है नरी। अच्छा मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत। मान भाई ने इशारा किया है, वो कहता है मजबूरी है, तो इंशाल्लाह जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। मौला आपको सलामत रखे। सईद भाई वो अली अंबिया जिसके शिया है यार, बिस्मिल्लाह करा। मौला आपकी इज्जत रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, क्या इससे बड़ी भी दलील कोई मुमकिन है कि तुम कहते हो शिया कैसे कहते हैं कि 12-14 अंबिया से अफजल है? पाजी इन्हीं को आवाज से बोलो, मैं राजी हाँ। बोल इसलिए रहा हूँ कि ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए, कल हम रहेंगे ना रहें। आपको पता हाथ साथ है, लोग पीछे लगे हुए हैं, रोड पे रहते हैं, क्या पता कितने साल हैं, कितने दिन हैं, कितनी सांसें हैं। चलो रिकॉर्ड हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। मौलवी साहब इस सर पे कुरान रख के बता, अगर हसन हुसैन नबियों से अफजल नहीं है तो जन्नत के सरदार कैसे हैं? पाजी चाचा जी, पाजी देखो ना, सदके जावा पाजी देखे ना, आदम भी जन्नत में, जनाब नूह भी जन्नत में, इब्राहिम भी, सारे अंबिया जन्नत में है या नहीं?
तो सरदार हसन हुसैन है। तो क्या अल्लाह की अदालत किसी छोटे रुतबे वाले को बड़े रुतबे वालों का सरदार बना सकती है? सबसे बड़ा आदिल वो है। और पाइतन पाक दी कसम, ऐसे हसद तो ही लोगों ने हसन हुसैन की बहनों को मारा है। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। क्या जुलजना है या मैं सदके जाना जी? इसका मतलब है 2-4 जो लफ्ज़ हैं वो मौला के अमीर बादशाह के। लो फिर अगर तो जनाब इसलिए आए हैं कि ज़रूर हाय करनी है और हाय का सवाब फ़ज़ाइल के लख नारे से ज़्यादा है। अगर आपका ये अकीदा है, किसी भी इमाम ने नारे पे जन्नत का वादा नहीं किया, ये कहा है कि एक मरतबा हमारी जात पे हाय कर, मैं सादिक तेरी जन्नत का जामिन हूँ। तो चके कोई भरा चके ना मैं जुमला आखर लगा पहला मैं बिस्मिल्लाह करा। माँ जी अपने पुत्र वास्ते माँ जी दुआ करे, भागोगा जी तुहाडी पूरी लैंड तुहाडे जिम्मे में हर हलाली हर शिया मां दा पुत्र एक करी हाय जरूर करे। अंकल शाद कह रहे हैं कि मौला का अमीर बेटा पाइतन पाक दी कसम में कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, किसी गरीब से गरीब का जनाजा भी कभी कब्रिस्तान से वापस नहीं आया। हर तरफ से मातम है। बिस्मिल्लाह, आप तो हर तरफ से मातम किस जी बिस्मिल्लाह, इसका मतलब है सारे वाकई रोने के मूड में बैठे हैं जी। हर तरफ से देखें ना सीने की आवाज़ आ रही है, हाजी सदके जावा जी। चलो भाई, कितना भी कोई गरीब हो, गरीब से गरीब का जनाजा कब्रिस्तान से वापस भाई रजब ने मेरे मौला की कातिल पे लानत की है ना, तो अब एक पाक बीबी का जिक्र मैं करता हूँ। तबर्रा भाई ने कहा है, अब तवल्ला मेरा सुनिए। वो कौन सी पाक मखदूमा है जो जवानी में बेवा हो गई थी? जी माँ सदके जावा जनाब उम्मे फरवा, अगर मुमकिन हो सके तो बेशक ये लाइटें बंद कर दें। जरा मेरी तरफ देखिएगा। भाई रजब ने आपकी तरफ से आपका मुंह बन के कहा है कि वो जनाब कासिम की माँ बीबी उम्मे फरवा है। लो एक बारी आराम ना साल है कि बाजमात हाय करे जे। मैं बाहर गया था तो मुझे वहाँ सवाल हुआ कि मौली साहब इस पाक बीबी का जिक्र बड़ा कम किया जाता है, कोई ऐसा फिक्रा है इस पाक बीबी के बारे में जो ज़हरा के बेड़े में किसी और बीबी पे फिट ना होता हो? कोई ऐसा मसाइब है? मैं कहा जी है। वो मैं मसाइब लफ्ज़ आकर लगा जी, उम्मीद है कि आपकी हाय निकल आएगी। मैंने कहा कि जब उजड़ के लुट के सैयदजादियाँ वापस मदीने आई हैं ना, तो घर आने से पहले करबला गई थी। एक बार उच्ची बोल तो मैं ठीक आख रहे हैं लै, फिर अगर तुम आख्या ना ठीक है तो फिर हाय तो वाजब हो गई जी। मैंने कहा पाक उम्मे फरवा और बाकी मुखद्दरात इस्मत में फ़र्क ये है, हर बीबी वापसी पर एक जगह बैठ के रोई है, अकेली कासिम की माँ है जिसे रोने के लिए मैदान का चक्कर काटना पड़ा। हाँ मैं बिस्मिल्लाह रो रो के कहती थी मेरा यहाँ भी गिरा है जी बिस्मिल्लाह करा मौला जी। सईद भाई मौला आपका पुरसा गुल फरमाए, मेरा यहाँ भी गिरा, सदके जावा। लो जी हर तरफ से मातम हो गया। इसका जी चाचा जी हौसला, इसका मतलब है मेरी तरफ से नमाज की 2 रकअतें पूरी हो गई। अब मैं वो आपको दुखी कहानी सईद भाई जी बिस्मिल्लाह करा दुखी कहानी के 2 फिक्रे सुनाता हूँ। माहौल बन गया है, अब हाय करना आपके वाजिब है क्योंकि मैं मौला हसन बादशाह की मुसीबत पर लगाऊँ। इतनी सख्त जहर थी मुंशी बागलता वालों कि अगर दरिया में कतरा जाता तो मछलियाँ मर जाती। लोग कहते हैं ये शिया सारा साल हुसैन हुसैन करते हैं, हसन का गम कम मनाते हैं। आज उच्ची हाय करके दसिया जी कि हुसैन के इमाम को हसन कहते हैं। मैं सदके जावा मेरे अजीज़ों, सख्त जहर थी। अरे क्या जी मेरे मौला की आंखें बंद हो गई। पागोगा जी मुश्किल से नाना की कब्र को चूमा। जिस भी इमाम पे आखिरी वक्त मुश्किल आता था ना, अगर वो मदीने में होता था तो वो नाना की कब्र पे जाता था। मुश्किल से सलाम किया, वहाँ से वापस आए। पाजी थोड़ियाँ सोहनियाँ रोंदियाँ अखा दी कसम में। मेरे मौला का आलम ये था, कभी इस दीवार का सहारा कभी इस दीवार का सहारा। तो एक बार मैंने पूछो मौला जा किधर रहे थे? मेरे मौला चाचा जी उस हवेली की तरफ जा रहे थे जहाँ पाक बीबी फरवा 3 साल के कासिम को अपने सीने पे सुला रही थी। ते इत्थे चुके लाहौर दा मजमा, तुसी इशारा समझने वाली मखलूक हो, बरीक बंदे हो, तुहाडी हाय निकल जानी है। जैसे मेरे मौला ने मुश्किल से दरवाजे पे दस्तक दी है ना, अंदर दरवाज़ा खोलते ही बीबी उम्मे फरवा इस आलम में आई कि पाक बीबी के बाल खुले हुए थे,
चेहरे पे मोटे मोटे आंसू थे और पाँव में नालायन नहीं थी। उन सारे हाय कह रहे थे। इमाम हसन कहते हैं कासिम की माँ अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं है और तेरी ये हालत होगी, वजह क्या है? कहा मौला तेरे आने से कुछ लम्हे पहले मेरी ख्वाब में माँ ज़हरा आई थी और वो मुझे कह रही थी फरमा जाग बेटे सबको ऐसे ही प्यारे होते हैं। फरमा तू अपने कासिम को सीने पे सुना जी बिस्मिल्लाह हौसला हौसला और मेरा हसन जी बिस्मिल्लाह गलियों में गिरता समझ मौला भाई थोड़ा पुरसा गुरु फरमाए। 2 जुमले में और पढ़ने ने जब सारे मजमे से मातम की सदा आएगी मैं मातम हसन कह के आपको सलाम कर दूंगा। मेरे जी बिस्मिल्लाह करती 5 जुमले जी बिस्मिल्लाह लो जी जितना बड़ा मातम होगा उन्हें पार जुमले आ जाएगा। अगर आपकी नीयत है रोने की भाई कह रहा 2 नहीं 5 जुमले लो जी 5 सुन लो। मेरे अजीजों ये जब दाखिल हुआ ना मेरी आप भैन भी सुनते नहीं पियाँ अल्लाह आपकी इज्जत महफूज रखे। जैसे मौला दाखिल हुआ ना अंदर तो जाकिर पढ़ते हैं कि मौला ने कहा कासिम की माँ मेरा बिस्तर बना। पाइतन दी कसमें तेरे डर से जाकिर कहते हैं मौला के लिए बिस्तर बना नहीं था, मुंह के बल हसन गिर पड़े थे। जी मैं सदके जावा जैसे मेहमान जी सदके जावा एक बारी मैंने पूछो साढ़िया नौकरा साढ़िया पुत्रा ये मसैब कितने करके खड़ेगा? मैं दसा तुहानू मैं इत्थे तुहानू लियाउणा जी कि पाक बीबी पाक होगा जी पहले बता रहा हूँ पाक बीबी ज़हरा तेरी अपनी किस्मत तेरे 2 पुत्र थे, एक के जनाजे पे तीर थे, दूसरे का जनाजा इत्थे लियाउणा 2 मिनट बाद इत्थे लियाउणा तो मैं सलाम करके जा रहा अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मेरे मौला गिरे आंखें बंद हैं और ऐसा लगता था जैसे धुआं निकल रहा हो, जहर इतनी सख्ती। मेरे मौला के ना दोनों हाथ अपने सीने पे थे। जब गिरे हैं ना ये जुमला तुसा महसूस करना है, ਇਹਦਾ ताल्लुक सुनने नाल नहीं महसूस करने वाले। पहले तो एक बार आमीन आखो अल्लाह किसी की भी बेटी जवानी में बेवा ना हो जाए। ये जड़ियाँ मेरिया पर्दे चो भैन बैठिया ने जिन्होंने सुहाग मौजूद ने तो अल्लाह मौजूद ही रखे वो इस खिच को समझन गया। जब मौला की आंखें बंद है ना ऐ कह आंखें बंद है हल्की हल्की खोलते हैं फिर बंद फिर खोलते हैं फिर बंद और जिगर पे हाथ थे। कासिम की माँ झुकी ये हो रहे तुम हाय करो ना करो मेरिया सारिया भैन करनगियां। करीब जाके रो कहती है मौला कुछ तो बोलिए चुप करके जा रहे हैं। हाँ मैं बिस्मिल्लाह करा मौला जी सदके जावा कुछ तो सदके जावा मैं बिस्मिल्लाह करा मौजी सदके मौला कुछ तो बोलिए। मेरे मौला ने इशारा किया नहीफ हाथ से इशारा किया कासिम की माँ मेरे करीब आ। जी मौला जिन्ने भैन वाले बैठे हो वीर हूँ थोड़े हाय वाजिब है। मेरे मौला कहते हैं फरवा मेरे करीब आ। जी मौला फरमाया जा मेरी बहनों को इतला दे तुम्हारा मेक का दरवाज़ा बंद हो रहा है। मैं बिस्मिल्लाह करा उनको बता दे कि मुझे जुल्म की जहर मिल गई। फरवा मैं हुज्जत खुदा हूँ मुझे पता है अब मैंने बचना नहीं है। जहर मुझे पहले भी कई मरतबा मिली है लेकिन अब जो मिली है मैंने बचना नहीं है। मेरे अजीज़ों ये थोड़े वेखना तलक एक बार मेंबर देखो कि थोड़ी हाई निकलेगी। पाक बीबी ने बड़ा बुरका लिया और पाक बीबी ज़हरा पाक की सबसे बड़ी बहू जनाब पाक ज़ैनब आलिया की हवेली तर बड़ी 4थे कदम में बीबी पहुंची थी। एक मरतबा शहज़ादे कासिम रोक अम्मा ठहर जा अद्धा फिक्रा मैं जुबान नाल आखना है ते अद्धा फिक्रा मैं हत्था ना समझाना है ते फिर वेखना किड्डे को मारफती मावां दे पुत्र बैठे हो। शहज़ादा कासिम रोका था अम्मा ठहर जा। क्या हुआ? कहा अम्मा मेरे होते हुए तेरा कदम घर से बाहर जाए अम्मा ये मुझे वारे में नहीं है। मैं बिस्मिल्लाह करा अम्मा तू मेरे होते हुए घर से बाहर जाए अम्मा मेरी जी सदके जावा जी भाई शरो जी अम्मा ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती अम्मा तू रुक मैं खुद जब बिस्मिल्लाह करा भाई 2 मिनट मुझे पढ़ने दीजिए फिर जहाँ भी जनाजा है वो बाद में आराम से आएगा भाई मुझे प्लीज़ मुझे 2 मिनट पढ़ने दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों शहज़ादा कासिम चला पासई जी 7वें कदम पे ये यतीम होने वाला 3 साल का सईद पहुंचा था। शहजादे के चचा शाह जी कदम रुके पागोगा जी कोई तूफान है मुसाहिब का। जैसे कदम रुके हैं ना माँ ने कहा कासिम क्या हुआ? अभी तो तू कह रहा था कि अम्मा मैं जाता हूँ। लो जी छोटे औलाद वाले हो हाय कुरान की कसमें वाजिब जे रो के सैयद कहता है अम्मा चला तो जाता हूँ पर ये बता कि ये मौत के पैगाम कैसे दिए जाते हैं। और मैं बिस्मिल्लाह करा अम्मा ये बता जी बड़ी मंजूरी वाली मजलिस है खुदा की कसम ये किसी जाकिर का कमाल नहीं ये आपकी नीयत है मोमिनों की नीयत है अदादारों की नीयत होती है जी हमारा कोई कमाल नहीं। मेरे अजीज़ों शहज़ादा कासिम चला हूँ बाबा जी मेरे लिए जी अद्धी रात है शहजादे की चोटियाँ हवा में सईद भाई और अपने आप से सैयद क्या कहता है अपने आप से इशारा तो आप समझना है शाम के बाजार को आपने खुद समझना है। अपने आप से कहता है कासिम आधी रात है तहज्जुद करीब है तेरी फूफी बड़ी नफीस है अली की बेटी है वो ज़रूर तहज्जुद के लिए उठेगी। जब फूफी उठेगी ना तब बताऊंगा फूफी अम्मा मेरे पापा को जहर मिल गई। इससे पहले ऊंचा नहीं बोलना मेरी फूफी बड़ी नफीस है मेरी फूफी बड़ी नफीस है मेरी फूफी बड़ी नफीस है।
इंज वेख्या जी, ये यूं करके ना यतीमों की तरह सैयद फूफी के दरवाजे पे बैठा। अगर मुझे कहेंगे तो मैं इतना मातम करूं, पाइतन पाक की कसम के मातम करता करता बेहोश हो जाऊं। अगों तुहाडी मर्जी किन्नी कुहाए कर दियो। अभी सैयद यतीम बन के भाई रजब जी बैठा था, अंदर पाक बीबी आलिया सोई थी। इस आलम में सैयद ज़ादी ने कुरान से गिलाफ उतारा और बीबी रो कहती है, हाय अम्मा फिजा मैं उजड़ गई। कहा अली की बेटी क्या हुआ? कहा अभी अभी माँ ज़हरा आई थी, मुझे कह रही थी तुझे नींदें याद है, यतीम कब से तेरे दरवाजे पे बैठा रह रहा है। अम्मा दरजी बिस्मिल्लाह, अम्मा जरा जाके देखना ये कौन सा यतीम है जो आधी रात को अम्मा अली की बेटी के दरवाजे पे आ गया। मेरे अजीजों जनाब फिजा दौड़ती हुई जैसे दरवाजे पे आई, जैसे आपने मातम किया ना, बीबी फिजा ने दोनों हाथों से, 2 मिनट के बाद जनाजा आएगा कोई भाई ना उठे, दोनों हाथों से मुंह पे मातम करके बीबी फिजा कहती है, अली की बेटी तेरी चादर उतरने के मौसम आ गए। अली की बेटी वो कोई आम नहीं, तेरे हसन की अमीर निशानी कासिम है। मेरे अजीजों बीबी पाक आई, सैयद ने कहा भाई 2 मिनट मुझे आराम ना पड़ना जी, थोड़ी मेहरबानी। सैयद ने कोई भाई ना पीछे देखे ना आप पीछे देखे कि जनाजा आएगा, 2 मिनट आपने मेरी मेहरबानी, मेरी मेहनत है ताकि ये पुरसा अगले साल कौन रहेगा, कौन सुनेगा, कौन पढ़ेगा, ये खुदा जानता है। 2 मिनट जरा इंज करके माहौल बनाओ जिवें असीं मदीने च बैठे हैं, उन्हां सैयदां दी कबरां ते जिथे चिराग कोई नहीं। जिम्मे सदके जावन, लोग कहते हैं हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, हुसैन कैसा गरीब है जाके देख। दुनिया के लोग वहाँ आके सलामे करते हैं, असल गरीब तो हसन है जिसकी कब्र पे ना साया है ना चिराग है। जी मैं बिस्मिल्लाह करा, अगला फिक्रा मैंने कहना है और हाय आपने करनी है। कासिम रोता हुआ आया, फूफी को बता के फूफी अम्मा मेरे बाबा को जहर मिली, रोता हुआ आया। पाक हसन की आखिरी सांसें हलक तक थी। एक मरतबा आँख खुली, देखा कासिम की माँ, कासिम आ गया। जी मौला, फरमाया इसको मेरे करीब कर। जी बाबा, लो जी ए ओ गल जे जित तो बगैर साड़ी कोई मजलिस मुकम्मल नहीं होंगी। ए मेहरबानी जरा मेरे लिखा जी, बच्चे हैं आपने नहीं देखना, इबादत है, मेहरबानी करीब आ। जी बाबा हुण सारे रल के मैं भी तुहाडे नाल हाय करना। इमाम रो के कहते हैं कासिम जी बाबा, फरमाया अब जा उस चचा को भी इतला दे जिसकी लाश पे ना बहनें रोएंगी, जिसकी हौसला भाई जवान हौसला, जिसकी लाश पे ना बेटियां रोएंगी, जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ जाएंगे। अब उस चीज सदके जावा। अगों मैं जुमला पढ़ लगा, अलमाल गाजी दा ते तुहाडी बर्दाश्त बाहर है। मेरे अजीजों रोता हुआ सैयद चचा हुसैन की हवेली तक पहुंचा। अंकल अरशाद जी वहाँ का आलम ये था, भाई शेरो जी आलम ये था कि मेरे मौला हुसैन भाजी एक बार साह लैके सानू किसी नहीं मारना कि इन्ना लम्मा क्यों रोए हो। वो सैयद ज़ादियाँ थी जिन्हें हाय हुसैन कहने पे तमाचे लगते थे, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बार साह लैके आवाज़ रोक के सुना जी। मेरे मुर्शद हुसैन का घर का आलम ये था कि पाक शबीर पाक होगा जी तहज्जुद के लिए अल्लाह अकबर कह चुके थे, और मेरे मुर्शद अलमों वाले अब्बास के हाथ में पानी का जग था और बादशाह वुजू फरमा रहे थे। ये तुसा वेख लिया, हुण वेख्या जी। मेरे मौला ने वुजू करते हुए देखा कि हुसैन के दरवाजे पे एक साया लहरा रहा है। ये वेख्या जी, वुजू रोक के ना जग रोक के मौला कहता है कौन है जो आधी रात को मेरी जिंदगी में मेरे मुर्शद के दरवाजे पे आए। तुहाडी हाय दी किस्में कासिम चुप रहा। मैं पूछता हूँ कौन है जो रात की इस पहर हुसैन के दरवाजे पे खड़ा है। हुण ओ अलम खलोता है तो तुसीं उन्हें चुमना भी सवाब समझते हो, तो है भी सवाब है, तो थले खलो के पुत्र भी मंगते हो, तो फिर अलम का वास्ता हाय सोनी करा जे। तीसरी मरतबा जब कासिम ने बोला अब्बास कहते तू जानता नहीं मैं अली का शेर अब्बास हूँ। हल्की आवाज में कहता है चचा मैं तेरा कासिम हूँ। जब कहा ना चचा मैं तेरा कासिम हूँ, अलमों वाले ने पानी का जग फेंका और रोक कहता तेरा चचा मर जाए। और मेरी जिंदगी में तुझे किसने रुला दिया? कहा चचा मेरे बाबा को जुल्म की जहर मिल गई। अजादारों दो फिक्रे कहने हैं पाक होगा जी, एक मौला हसन का और एक मौला हुसैन का। चूंकि जाकिर भाई आवाज देना, जाकिर आपके सामने कहता है पाक ज़हरा तेरे 2 पुत्र थे, एक के जनाजे पे तीर थे, दूसरे का जनाजा तीरों पे था। पाइतन पाक दी कसम जाकिर तेरे डर से कहते हैं कि 70 तीर कफन पे लगे थे। गाजी के इस पाक आलम की कसम कफन पे नहीं हसन के बदन पे लगे थे। कोई तीर मौला की आंख में लगा और कोई तीर कान में लगा। किबला काबा हजरत जाकिर सैयद भाई अभी नहीं रियाज हुसैन शारत तो वाल फरमाया करते थे, मुझे भाई
अभी ने भाई एक जुमला पढ़ दिया खुदा के लिए, भाई एक जुमला जनाजा, जी भाई एक जुमला मैंने कहा था आपको मौला हसन के जनाजे की कसम है, अभी कोई भाई ना उठे तो मौला के जनाजे का वास्ता है, 1 मिनट रुकिया जे मैं जुमला आखना तो जिन्ने हलाली मातमी ने तो हाय निकल जानी है। ये सिर्फ 1.5 जुमला, आधा मौला हसन का और 1 मौला हुसैन का। जाकिर रियाज हुसैन शाह साहब रतवाल सारे हाय करे जे, वो फरमाते हैं मुझे इस भाई आवाज नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं कि जालिमों ने तो हाजी मार जुमला कि जालिमों ने जनाजे पे तीर मारे, वो कहते हैं मुझे दुख इस बात का है कि तीर मारने वाले मोहम्मद की कब्र को टेक लगा के मार रहे थे, और दूसरा पुत्र जिसका जनाजा तीरों पे था। अब जानते हैं इसका मतलब क्या है? सर से लेके पांव तक एक एक जगह हुसैन को तीर लगा था। जब जुल्जना से गिरा मेरा मौला कहता है या उम्मा, हुसैन का मुंह